and welcome. You're watching the Monday edition of This Is Exclusive, and tonight, ladies and gentlemen, we start this week with that big political face-off that's taking place in the parliament. Ladies and gentlemen, what should have been public property has now turned out to be property of Sonia Gandhi. Now, that's the allegation that the Bharatiya Janata Party has leveled against Sonia Gandhi, and this stems from letters that were written by Pandit Jawaharlal Nehru to several political personalities like Edwina Mountbatten and a few others. These letters that were supposed to be made public were taken by Sonia Gandhi back in 2008. Tonight on This Is Exclusive, we take you through the details of how 51 cartons were actually sent to take away the letters of Pandit Nehru. So the BJP is now alleging, what is it that the Congress party is trying to hide? Not just that, let's also take you through the other story that we're going to get to you tonight. Ladies and gentlemen, this is with regards to the Sambal truth. Idols that have been recovered during the searches that were carried out. This has now led to another major political face-off in Uttar Pradesh, with Yogi Adityanath now dropping a big bombshell, saying that there is infighting within the Muslims that has basically resulted in the riots that have took place in Sambal. All this and much more on this edition of This Is Exclusive. But up first, let's take you through the headlines we're tracking at this time. हम भी ये डिमांड करते हैं कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को तुरंत सोनिया जी वापस करें, और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर कितनी चिट्ठियां गई थी, उतनी ही चिट्ठियां वापस आई कि नहीं आई। Prime Minister's Museum and Library member writes to Rahul Gandhi over papers taken by Sonia in 2008. Issue raised in Lok Sabha, BJP demands probe. वहाँ का पठान, वहाँ का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो परशुस्व की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? Days after Sambal officials reopen ancient temple closed since riots in 1978, Yogi says 209 Hindus died in Sambal riots and no one shed a tear for them. One nation, one poll, a reality soon. Union Law Minister Arjun Ram Meghwal to table the bill in Lok Sabha. It's a diversionary tactics from the real issue, and we will never allow the diversionary tactics. This is it's all known that Nehru's letter must be with the Nehru family, not with the Godse family. Congress responds to BJP over Nehru letter. Rao calls it an attempt to defame Nehru's sacrifice. Ladies and gentlemen, what should have been made public, what should have been something that you and I could have actually access to in the National Archives is now becoming a private property of the Gandhi family. Back in 2008, in a very surreptitious manner, Sonia Gandhi basically dispatches her own aide. And an instruction is actually given to the Nehru Museum that letters that were written by Pandit Nehru to be segregated. One that is supposed to be personal in nature and the other perhaps professional in nature. And those letters that were actually segregated, they were segregated into multiple cartons. 51 boxes were actually sent to the Nehru Museum to take those letters. And what are these letters? These are letters that were basically written by the first Prime Minister of India to Edwina Mountbatten, to various other political stalwarts of the time, starting from Babu Jagjeevan Ram to various others. All these letters, which were supposed to be made public for the usage by our scholars, were taken away. In fact, a diktat was actually given
that if at all anyone has to peruse through these letters, then permission should have been taken from Sonia Gandhi. Now, this has been revealed by a historian who's also now a member of the Prime Minister's Museum. Ladies and gentlemen, before I go across to the historian who's now written that strongly worded letter to Rahul Gandhi asking his mother to return those letters, first take a look at the massive political face-off that's brewing within the parliament. Nehru's secret letters have stoked a fresh political row. The collection includes letters between Jawaharlal Nehru and various important figures in world history like that of Edwina Mountbatten and Albert Einstein. Rizwan Qadri, a member of the Prime Minister's Museum and Library Society, had earlier written a letter to Sonia Gandhi. In that letter, Qadri asked her to return the personal papers of former Prime Minister Jawaharlal Nehru, which her office took by virtue of being the family's representative and donor. 2008 में उनके प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे और उन्होंने जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को अलग किया, उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन है पर्सनल पेपर्स का जो डोनेट कर दिया गया था, ये संग्रहालय को दे दिया गया था और वहीं पर ही ये संग्रहित था। उसको ये 2008 के साल में विड्रॉ किया गया है। बाय हू? श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे उन्हीं के प्रतिनिधि ने ये विड्रॉ किया है। Various historians have opined that since these letters were signed by Nehru when he was the Prime Minister, these letters cannot remain private. आज एक डोनर ने कहा हमारा कलेक्शन वापस दे दो, कोई डोनर कंडीशन के साथ देता है, कंडीशनल नहीं हो सकता। आपने डोनेट कर दिया तो अनकंडीशनल डोनेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्र की धरोहर है। The BJP has expressed the historical significance of these secret letters. Country really wants to know as to what was in these correspondence between, say, Nehru ji and Lady Mountbatten, between Nehru ji and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji, and there are certain letters, it seems, between Nehru ji and Albert Einstein as well. What were the contents of this letter that the first family felt that it should not be made public? Meanwhile, some believe that it is a diversionary tactic of the BJP at play. Why Godse's family and Godse's channels are very eager to know about these kind of things? We all know that the anger Godse's have it on Gandhi and Nehru. It's a diversionary tactics from the real issue, and we will never allow the diversionary tactics. These letters were removed from public access in 2008 at the request of Sonia Gandhi, the then chairperson of the UPA, and have since been stored privately. The letter by the PMML acknowledged the fact that the letters hold personal significance to the Nehru family. However, the body believes that the access to these letters will mean a great deal to scholars and researchers. As Nehru's secret letters spark yet another controversy, the question is, what are the Gandhis trying to hide? Ladies and gentlemen, it all started with a letter that was written by Rizwan Qadri, who's also a member of the PMML. And he also goes into detailing the various meetings that have actually taken place. कादरी साहब, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, जब कांग्रेस ये कहती है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, इसके पीछे कारण ये है कि पहली बात, आप 2008 की बात अब बात करें, करीबन 10 साल से ये सरकार पावर में है और इसके बाद आपको 10 साल के ऊपर लग गया है एक चिट्ठी भेजने के लिए, वो भी राहुल गांधी को, कि क्या आप ये चिट्ठियां जो पंडित जी ने लिखा था वो वापस करने के लिए इतने साल क्यों लगा? 2019 में जब मैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी का सदस्य बना, तब से मेरा कंटिन्यूअस डिमांड रहा है कि यहां पर कोई भी शोधकर्ता आए तो उसको पहले जो दिक्कत होता था ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए सभी शोध मटेरियल, सोर्स मटेरियल इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका शोध कार्य बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए।
इसके डोनर से क्यों परमिशन दिया जाए? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में ही उनके देहावसान के बाद इस संस्था की स्थापना की गई। उसके साथ साथ में यह भी रखा गया था कि आजादी के संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया है वैसे हमारे राष्ट्र नायकों का भी पूरा कलेक्शन यहाँ पर लाया जाए और जिसका अभ्यास करके संशोधक अपना शोध कार्य करें और इससे दुनिया को पता चले कि आजादी के संग्राम में कैसा योगदान रहा है। तो यही इसकी लेगेसी थी और ये संस्था की पहचान अपने रिसर्च मटेरियल की वजह से, यहाँ पर जो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते थे इसकी वजह से, यहाँ की रिच लाइब्रेरी की वजह से और यहाँ का सोर्स मटेरियल की वजह से दुनिया भर में हुई थी। 2008 से पहले यानी कि 1964 में इस संस्थान की स्थापना हुई, 66 में सोसाइटी बनी, उसी के साथ साथ नेहरू फंड का भी जन्म हुआ, उसका भी उद्भव विकास हुआ, तो उसका काम अलग था। मगर ये संस्था जो संशोधकों के लिए कायम की गई थी, क्योंकि आजादी के संग्राम के दौरान भी पंडित जी ने इतिहास का महत्व पहचानते हुए भारत के इतिहास और संस्कृति को उजागर करते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। वो इतिहास की महत्ता जानते थे, इसी वजह से ये उनकी याद में ये रिसर्च संस्था कायम की गई थी और इसी शोध संस्थान के अंदर ये सारा सोर्स मटेरियल इतने वर्षों तक उपलब्ध था, 2008 से पहले तक उपलब्ध था। कादिर साहब, एक वापस आपको एक बार सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि क्या आप कह रहे हैं कि ये पहली बार 10 दिसंबर को जो आपने लेटर लिखा जो हमारे पास है, इससे पहले भी आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखा था आपने? जी हाँ, मैंने 9 सितंबर को श्रीमती सोनिया जी को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था कि हमें इस संशोधन कार्य के लिए ये सोर्स मटेरियल उपलब्ध कराएं, आइदर आप इस संस्था को ओरिजिनल मटेरियल वापस दे दीजिए या उसका कॉपी प्रोवाइड करिए, हमें आपके यहाँ बैठ के संशोधन कार्य के लिए ये जो करीबन 51 बॉक्स जो कार्टन्स बताए गए हैं, ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर, मिनट्स के अंदर मेंशन किया गया है कि किस तरह से ये कलेक्शन वहां पर सोनिया जी के द्वारा वापस लिया गया है। तो हमने तो इनसे गुजारिश किया था कि हमको आइदर आप सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करिए या हमें स्कैन करने का परमिशन दीजिए, हमारा मकसद तो संशोधन करना था, पर उनके द्वारा उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि उनके सुपुत्र और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल जी को हम रिक्वेस्ट करें कि हमारे इस शोध कार्य के लिए आप हमें सहायता करें, कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकालें तो जिससे कि हमारा शोध कार्य चले। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाना शुरू हुआ है, मैं सरदार पटेल में ज्यादा संशोधन कार्य करता हूं और इसी ये बताइए, क्योंकि लोग, क्योंकि आप क्या एक आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आपने कई बार एक लेटर आपने लिखा और जवाब में आपको अब तक क्या मिला, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा है कि जितने भी रिमाइंडर्स भेजे गए गांधी परिवार को अब तक कुछ नहीं आया। क्या ये बात सही है कि उन्होंने ना ही कोऑपरेट की और ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया आपकी चिट्ठी को? उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर, उनका कोई प्रतिसाद हमें मिला नहीं है। तो आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि राहुल जी का भी इस बारे में ध्यान रख उनको करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि आप इसमें हमको क्या मदद कर सकते हैं। और ये राष्ट्र की धरोहर, मैं प्रधानमंत्री पंडित जी को जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, क्या ये कॉरेस्पॉन्डेंस उनको पर्सनल कैपेसिटी पे किया गया था? ये जब हम देखेंगे तब पता चलेगा। लेडी माउंटबेटन यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो वो पर्सनल कैपेसिटी से नहीं आए थे, वो ऑफिशियल कैपेसिटी से आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वो आए थे, उनके धर्मपत्नी थे। तो वो उनका पंडित जी के साथ जो पत्र व्यवहार जो हुआ हैगा, इसके बारे में जात की मिथ हैगी। वो जमाने के यूथ लीडर हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण जी, जेपी ने तो बाद में बहुत बड़ा लोक आंदोलन किया था, जन आंदोलन किया था। तो वो पंडित जी के साथ उनका पत्र व्यवहार क्या होता था, क्योंकि
वन साइडेड कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, दोनों की तरफ से ये कॉरेस्पॉन्डेंस होता था। क्या वो इंडिविजुअल लेवल पे होता था, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री को किया जाता था? तो प्रधानमंत्री का कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस, चाहे वो कोई भी हो, वो प्राइवेट नहीं हो सकता है, वो पब्लिक डोमेन में ही आना चाहिए। और ये 2008 तक तो ये इसी संस्थान की मिल्कियत थी। हमारे ईजीएम के दौरान हमारे बुजुर्ग साथी राम बहादुर राय जी ने भी इसके बारे में और क्लियर किया कि उन्होंने और वो जमाने के संसद सभ्य मदन लाल खुराना जी ने एक पुलिस कंप्लेंट किया था। हालांकि एफआईआर नहीं हो पाया था, मगर उनकी ये कोशिश के कारण ये जो एडवीना माउंटबेटन का कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो पहले भी विड्रॉ किया गया था, वो उनकी कस्टडी में रखा गया था, तो वो फौरन इस शोध प्रतिष्ठान में वापस दे दिया गया। आप कह रहे हैं कि एडवीना माउंटबेटन को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी वो पहले भी विड्रॉ करने की कोशिश किया गया? जी हाँ, जी हाँ। और ये कब हुआ है कादरी साहब? क्योंकि आज आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एडवीना माउंटबेटन को लेकर पहले भी ये चीज हुआ, तो क्या ये कहना सही होगा कि एक बार विड्रॉ करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद वापस दिया गया? जी हाँ, ये राम बहादुर राय जी ने एजीएम के दौरान भी बताया था और उसके बारे में भी हमसे संवाद में भी कहा था, और उन्होंने कहा था कि हमको संशोधक के नाते हर हमेशा कोशिश करना चाहिए, कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बताई थी कि आप शोध कार्य करते हैं, आपका लक्ष्य सिर्फ शोध कार्य होना चाहिए, कभी भी कोई जगह से ना उम्मीद होना नहीं चाहिए। एक लेटर लिखा, दोबारा लिखो, 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, अपनी कोशिश करनी चाहिए, और दूसरे माध्यम से नया नया सोर्स मटेरियल हमको हमेशा खोजबीन करना चाहिए। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस उनके बताने के बाद, ये सारी चीजें आने के बाद हमने उसको कंटिन्यूअस फॉलो अप किया, और इसके बारे में पत्र व्यवहार हमारा चलता रहा, और आखिरी एजीएम में भी सभी हमारे साथी माननीय सम्मानीय सदस्य ने भी समर्थन किया। इससे पहले भी एक सदस्य ने हमारी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कैसे इतने वर्षों तक ये चीज यहाँ पर थी, डोनेट कर दी गई थी, क्योंकि ये संस्था की स्थापना ही इस मकसद से की गई थी कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भी शोध कार्य है इस पे संशोधन किया जाए और उस पे अपना शोध कार्य आगे बढ़ाया जाए। ये रिसर्च स्कॉलर के लिए बनाई गई संस्था। ये बहुत जरूरी है कि ओपिनियन की बात हुई थी, उस दिशा में क्या कार्यवाही हुई वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का वो है, मगर नेहरू पेपर्स में से कई पन्ने डिस्ट्रॉय किए गए थे। ये मैंने वर्षों पहले जब देखा था, तब कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, राजन राजम जो नाम की व्यक्ति थी, वो कुछ पुरानी फाइल्स नेहरू पेपर्स में से भी पन्ने निकाल देते और पेपर श्रेडर मशीन से डिस्ट्रॉय कर देते। एक और सवाल करना चाहूंगा रिजवान साहब, वो है कि 2008 की अगर बात करें, जब एमवी राजन सोनिया गांधी की एड वो आते हैं और 51 के ऊपर कार्टन के अंदर ये चिट्ठियां रखकर लेके जाते हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है अब तक? और अगर कार्रवाई की गई हो तो उसमें क्या निकल कर आया कि आखिरकार इतने सारे बॉक्सेस को भेजकर और ये सब चिट्ठियां प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर लेके जाते, जो कि पहले प्रधानमंत्री की चिट्ठियां है, जो पब्लिक को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता था, जो नहीं किया गया। क्या आप बता सकते कि 2008 में आखिरकार हुआ कैसे और क्या नियमों का पालन किया गया था? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का लुकआउट है, वो मेरा विषय नहीं है। मैं तो एक संशोधक हूँ, इतिहास संशोधन में काम करता हूँ, मगर जब हमारे ध्यान पे ये चीज आई कि हमको देखने क्यों नहीं दिया जाता है, मुझे सिर्फ लेडी एडवीना माउंटबेटन के पेपर्स में ही इंटरेस्ट है ऐसा नहीं है, मुझे जेपी के पेपर्स में भी काफी इंटरेस्ट है कि वो, क्योंकि गुजरात के भी नौजवानों के वो आइकॉनिक यूथ लीडर अपने जमाने में हुआ करते थे, और उनके या आजादी से पहले 10 अगस्त 1947 को क्विट इंडिया मूवमेंट के जो गुजरात कॉलेज के शहीद थे, उनका मेमोरियल का लोकार्पण करने के लिए भी जयप्रकाश नारायण आए थे। तो वो ऐसे लीडर थे, यूथ लीडर थे, कि उनका पंडित जी के साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस था। तो वो सारा सब देखना जरूरी है, उस वक्त को समझने के लिए, उनके रिलेशंस को समझने के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है।
तो इसके साथ साथ आप देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से था, क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ का कॉरेस्पॉन्डेंस था? एक इतने बड़े विश्व के साइंटिस्ट के साथ हमारे पहले प्रधानमंत्री का जो पत्राचार हैगा, उसके माध्यम से हमको वो जमाने में कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, उनकी भाषा होती थी, उनके क्या विषय रहते थे, उनके साथ कैसा संवाद होता था, वो और उसका प्रत्युत्तर किस तरह से दिया जाता था, वो सारी चीजें भी हमको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान साहब रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज रिजवान कादरी, हु इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम लाइब्रेरी, एंड putting this into perspective, that these are not the private property of Sonia Gandhi as claimed by the Congress party. In fact, the Congress party makes the allegation that this is not a gift and perhaps it is the property of the Gandhi family. Now, that's the position that has been taken by the Congress party, which has now been cleared by Rizwan Kadri, historian and a member of the PMML. That's all that we could pack in this edition of This Is Exclusive. In fact, this is the big debate coming up at 9 p.m. with Arnab Goswami.